ہم نے دیکھا کہ رمضان کے اندر بڑا ایک ایس او پی انفورسمنٹ کے لیے بہت بڑے لیول کے اوپر ایک کام کیا گیا. اس کے بعد عید کی چھٹیوں کا بریک آیا. ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد اس کے اندر مانگی انفورسمنٹ کے لیے, اور اس کی وجہ سے ہمیں واضح بہتری ہوتی بھی نظر آئی صورتحال کے اندر. لیکن پھر وہی ایک دفعہ دوبارہ جیسے ہی وبا ذرا سی کم ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں شاید کہیں سے یہ آ جاتا ہے کہ اب یہ وبا جو ہے شاید مکمل طور پہ ختم ہو گئی, یا یہ کم سے کم ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو ایکشن ہیں, جو ہم خود عمل کرتے ہیں, اس سے براہ راست جڑا ہوا ہے اس وبا کا پھیلنا. اور وہی ابھی جو صورتحال دیکھ رہے تھے, کراچی کی خاص طور پہ بات ہو رہی تھی, اور کل ہم نے یہ بھی سنا کہ ظاہر بالکل ٹھیک کر رہی ہے سندھ حکومت جو ہے وہ بڑے ایکٹیولی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اقدامات کیے جائیں جس سے کراچی میں جو بہت خطرناک حد تک اس وقت بڑھی ہوئی ہے وبا کا پھیلاؤ بڑھا ہوا ہے, اس کو کس طریقے سے روکا جائے. لیکن دیکھیں, ہم نے پچھلے ایک سال کے اندر ایک سبق سیکھا ہے, اور شاید پاکستان دنیا کے وہ شروع کے ممالک میں تھا, بہت چند ممالک کے اندر جنہوں نے یہ اپروچ لی, اور وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ملک بند کر کر اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کی قیمت جو ہے, ایک تو وہ بہت زیادہ ہمارا جو کمزور طبقہ ہے, جو دہاڑی دار ہے, اس کو ایک اتنی زیادہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جس کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے وبا بھی ختم نہیں ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ بالکل بند کر دیتے ہیں تو جیسے ہی کھولتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہی تباہی آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ہم نے پچھلے سال انڈیا کے اندر, بھارت کے اندر دیکھا, ایک بڑے پیمانے کے اوپر یہی ہوا, ایک دم سے بند کر دیا, جب کھولا تو وبا نے بہت ہی تیزی سے پھیلاؤ اس کے بعد آیا. بنگلہ دیش کے اندر ابھی ہم نے دیکھا ہے بڑا سیویر انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, جیسے ہی کھولا تو اس وقت بدقسمتی سے ان کی سب سے زیادہ جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہلاکتیں اس وقت ہو رہی ہیں بنگلہ دیش کے اندر. تو ہمارا ایک طریقہ کار ہے بڑی محنت سے بنایا ہوا, ڈیٹا کو بنیاد کو سامنے رکھ کے, تجربے کی بنیاد کے اوپر, اور وہ کامیاب ہے, دنیا سے ہمیں اس کی تعریف ملی ہے, اور وہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم پورے شہر ہفتوں بند کر دیں, یہ اس مسئلے کا علاج نہیں ہے. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ وہ جو تمام حفاظتی تدابیر ہیں, جو پورے ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر, آئیڈینٹیفائڈ ہاٹ اسپاٹ کی بنیاد کے اوپر لاک ڈاؤنز کا کہا جاتا ہے, جو ایس او پی کی انفورسمنٹ کا کہا جاتا ہے, اگر وہ اچھے طریقے سے ہو جائے تو اس میں ہم ایک دفعہ نہیں, ہم بار بار دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے. اس وقت کی صورتحال ہے یہ کہ ہم نے یہ 26 سے 28 جولائی پچھلے 3 دن کا میں نے ڈیٹا نکلوایا تھا, آج صبح این سی او سی کی میٹنگ کے اندر یہ ہمیں پریزنٹ کیا گیا ہے کہ مختلف جو وفاق کی اکائیاں ہیں اس کے اندر ایس او پی کی انفورسمنٹ یعنی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی شرح کیا چل رہی ہے. سب سے بہتر صورتحال اسلام آباد کے اندر 56.4% کمپلائنس ہے, اس کے بعد خیبر پختونخوا 46.6% ہے, آزاد جموں اینڈ کشمیر 42.7%, گلگت بلتستان 37.4%, پنجاب 38%, اور سب سے کم سندھ اور بلوچستان ہے 33% کے اوپر. اگر ہم اس انفورسمنٹ کو محنت کر کے, اور میں خاص طور پہ اس وقت کراچی کے پوائنٹ آف ویو سے بول رہا ہوں, اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے, اور اس لیے ہم پوری جس طریقے سے پہلے بھی رہا ہے پوری مدد دیں گے سندھ حکومت کو. یہ جو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں, جو احکامات جاری کیے گئے ہیں, ان کی زمین پہ عمل درآمد کے لیے, اور اس کے لیے ہمیں جو سپورٹ ریکوائرڈ ہے, چاہے وہ رینجرز ہوں یا فوج ہو, وہ بھی مکمل طور پر مہیا کی جائے گی. ہماری ریکویسٹ جا چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے کہ بہتر جیسے ہی عمل درآمد کیا جائے گا تو آپ کو نیچے آتی ہوئی نظر آئے گی وبا. لیکن یہ تو ایک وقتی حل ہے. ہم زور لگاتے ہیں, عمل درآمد بہتر کراتے ہیں, وبا ذرا نیچے چلی جاتی ہے, پھر ذرا سے کھلتا ہے, دوبارہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. دنیا نے صرف ایک ہی چیز دیکھی ہے, ویکسینیشن واحد حل ہے اگر آپ اس سے مکمل طور پر نکلنا چاہتے ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر ویکسینیشن کیمپین چل رہی ہے. شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی کیمپین کسی بھی چیز کے لیے نہ چلی ہو, اتنی سسٹین بیسس پہ پاکستان کے طول و عرض پہ ہر حصے میں پاکستان کے. اور پرسوں جیسے میں نے بتایا تھا, ٹویٹ کیا تھا, اس سے ایک دن پہلے بھی تقریباً 6,80,000 ہم نے پرسوں کی ویکسینیشن, جو ایک نیا ریکارڈ تھا, اسے ایک دن پہلے 3 دن پہلے 6,80,000 ویکسینیشن ایک دن میں ہوئی, وہ جو نیا ریکارڈ تھا. اگلے دن یعنی اس کے ایک دن کے بعد 7,78,000 ویکسینیشن ہوئی, جو پھر ایک نیا ریکارڈ تھا. اور کل پھر
तकरीबन 8,49,692 वैक्सीनेशन हुई, जो तीसरे दिन तबातर से एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। ये खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए। तमाम पाकिस्तानी जो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आ रहे हैं, वो तमाम अमला जो वैक्सीन लगाने के अमल के अंदर शामिल है, उन सबको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। कल जो पहली डोज है उसका भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया। वो 6,37,000 से जायद वैक्सीनेशन लगाई गई फर्स्ट डोज की जो सिर्फ थी। और एक अच्छी बात यह है कि तमाम वफाक की इकाइयां जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। इस बेहतर कारकर्दगी के अंदर पंजाब ने लीड किया, ज़ाहिर है सबसे बड़ा सूबा है, और सिर्फ पंजाब सूबे के अंदर कल 5 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन की गई, और ये हाईएस्ट एवर सबसे ज़्यादा पंजाब में आज तक जब हुआ। इसी तरीके से सिंध ने कल 1,69,000 वैक्सीनेशन की, जो सिंध का सबसे ज़्यादा का रिकॉर्ड है। खैबर पख्तूनख्वा 1,11,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन, ये इनका भी हाईएस्ट है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और बलूचिस्तान भी 18,500 जो बलूचिस्तान के लिए भी रिकॉर्ड है। तमाम सूबों ने जो है वो नए रिकॉर्ड कायम किए, और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कल ट्वीट किया था, हमारा हदफ जो अगला है वो 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा एक दिन के अंदर वैक्सीनेशन को क्रॉस करना है। और मेरे ख्याल में जैसे जैसे पाकिस्तानी समझते जा रहे हैं वैक्सीन की अहमियत क्या है, तो ये इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो लोग इसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, अब वो वक्त आ गया है कि कम से कम ऐसे काम जिसको करने से दूसरों की सेहत के ऊपर खतरे का पैदा होता है, हम उन चीजों के ऊपर अब बंदिशें लगानी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले 1 अगस्त को जो जहाज पे, हवाई जहाज पे जो सफर करेंगे लोग, उनके लिए ये पहले से अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि 1 अगस्त से सिर्फ वो लोग जो कम से कम एक वैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं, सिर्फ वो सफर कर सकेंगे। और इसी तरीके से जो असातिज़ा हैं जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सेहत का हम खतरा नहीं ले सकते, इसलिए बहुत दफा मौका दिया गया, बड़ी मजबूत कैंपेन चलाई गई, और अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज्यादा जो है टीचर वो वैक्सीनेट भी हो चुके थे। आज से कोई मैं हफ्ता पहले की आपको बता रहा हूं डेटा। तो अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो 1 अगस्त से आप स्कूलों में जाके या कॉलेज के अंदर जाके पढ़ा नहीं सकते। हम अपने बच्चों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते सिर्फ इसलिए कि आप जो है वो वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं है। इसके बाद हम आज फैसला किया गया, इससे पहले सूबों से मुशावरत भी की गई थी इसके लिए, और 31 अगस्त से मजीद कई सेक्टर हैं जहां पर ये बंदिशें लगने जा रही हैं। वो क्या क्या हैं जी? वो ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, स्टाफ जो ट्रांसपोर्ट के अंदर बच्चों को स्कूल ले जाने, कॉलेज ले जाने की ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं, उसकी मिनी बस, बस के अंदर, वैगन के अंदर काम करते हैं, 31 अगस्त से पहले पहले वो वैक्सीनेट होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो फिर वो उनको ये काम करने की इजाजत नहीं होगी। स्टूडेंट्स जो हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो उनके लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख रखी गई है। अगर उनकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है, उन्होंने 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन करवानी है। इसी तरीके से जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसमें अगर काम करते हैं लोग, क्योंकि उनका भी अवामी राब्ता होता है, उनके लिए भी 31 अगस्त आखिरी तारीख है, उससे पहले पहले उन्होंने ये करना है, वैक्सीन करवानी है। जो पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन हैं, उनकी फैमिलीज जो हैं, उनके लिए भी, खासतौर पे जो मुलाजमीन हैं उनके लिए 31 अगस्त फाइनल डेट है। बिल्कुल सहूलत मुहैया की जा रही है, आसान तरीन कर दिया गया है वैक्सीन लगवाना। उसके बाद जो है आप दफ्तर नहीं आ सकेंगे, तो उससे पहले आपने वैक्सीन लगवानी है। वो लोग जो होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल्स, जो शादी हॉल्स हैं वहां पर काम करते हैं, ये तमाम जगह जहां पर ये हाई रिस्क एरियाज हैं, इसलिए इसके अंदर बंदिशें भी पहले ज्यादा लगी हैं। यहां पर अगर आप काम करते हैं जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, आपने अगर 31 अगस्त तक वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो आप उसके बाद यहां पर काम नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो अगली फहरिस्त है, जो बसों में, वैन, कोस्टर, ये ट्रेन्स और ड्राइवर्स वाला जितने भी हैं, या बसों के अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, चाय खाने हैं, जहां पर भी लोग आते हैं, अवाम आते हैं, बड़ी तादाद के अंदर उनके साथ इंटरफेस होता है, इनकी भी 31 अगस्त जो है वो डेडलाइन रख ली गई है।
इसी तरीके से जो पब्लिक डीलिंग करते हैं वो दफातर, बैंक्स हैं, नादरा है, प्रॉपर्टी ऑफिस है और इस किस्म के तमाम जो दफातर हैं, इसके अंदर भी 31 अगस्त आखिरी डेट है जो वहां पर काम करते हैं लोग। और आखिरी जो लिस्ट है इसके अंदर वो मार्केट्स में दुकान के अंदर काम करने वाले, खासतौर पे शॉपिंग मॉल, जो चेन स्टोर्स हैं, कपड़े की मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की मार्केट्स हैं, ये तमाम लोग जहां पर लोग बड़ी तादाद के अंदर जाते हैं, 31 अगस्त के बाद यहां पर पाबंदी होगी आपकी काम करने के लिए अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाई हुई। ये सारी फहरिस्त में ये क्यों इन सेक्टर्स को किया गया है, ये सारी वो चीजें हैं जहां अवाम बड़ी तादाद में जाकर वो लोग जो वहां पर काम करते हैं उनके साथ उनका मेल होता है, वो उनको वहां पर उनसे एक्सपोजर होता है, इसलिए हमने ये जो लिस्ट बनाई है इसके अंदर ये शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मजीद इसकी जो अगली फेज होगी उसके लिए हम देखेंगे कि सूरत हाल कैसी चल रही है और उसकी बुनियाद के ऊपर मजीद फहरिस्त जो है वो आगे जो है वो शाया की जाएगी, जो ज़ाहिर 31 अगस्त को नहीं वो एप्लीकेबल होगी, उसके लिए फिर एक नई तारीख का, बाद की तारीख का फैसला किया जाएगा। लेकिन 31 अगस्त तक ये तमाम जो सेक्टर्स मैंने बताए हैं यहाँ इसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सारे सेक्टर्स, ये ज्यादातर वो सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क है, जहां सबसे ज्यादा बंदिशें लगी हैं, स्कूल सबसे ज्यादा बंद हुए हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हुई है, खाने की जगह जो है, रेस्टोरेंट बंद हुए हैं। हम चाहते हैं आपका कारोबार चले, हम चाहते हैं कि यहां पर जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, जो दिहाड़ी कमाते हैं, फिर अपने घर में जाके लोगों के सामने खाना रखते हैं, हम चाहते हैं उनमें से किसी का रोजगार ना छिने। ये इसलिए ये आपके लिए किया जा रहा है, ये कोई आपको सजा नहीं दी जा रही, ये आपकी अहमियत का हम एक एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं कि आप वाकई इस माशरे के लिए, इस मईशत के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि तरजीहाती बुनियाद के ऊपर आपकी सेहत की हिफाजत की जाए ताकि आपके घर का कारोबार भी चलता रहे, आपका घर का चूल्हा भी चलता रहे और मईशत भी चलती रहे और माशरा भी जो है वो एक हिफाजत के साथ जो है वो पूरा माशरा चले। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोरोना के अंदर मुकाबला किया है, पूरी एक कौम की अप्रोच लेके, कोई एक हुकूमत नहीं, कोई एक इदारा नहीं, पूरी कौम ने जिस तरीके से इसका मुकाबला किया, दुनिया ने इसकी तारीफ की है। और उसी अच्छे काम को देखते हुए अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये हमारे ईमान का जुज़ है कि आखिर में फैसला तो अल्लाह ताला करते हैं, तो जो भी कौम ने किया अल्लाह ताला ने उसको देखते हुए कौम को एक मुश्किल से निकाला। हमारे इर्द गिर्द हमने देखा है किस किस्म की तबाही आई है। अब ये आखिरी एक एक्शन है, मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी कौम जिस तरीके से इसके अंदर और ये नजर आना शुरू हो गया, जिस तरीके के मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस तरीके से रिकॉर्ड टाइम किए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के, ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम इसके अंदर भी सुरखरू होगी। और दुनिया जो है, जिस तरीके से पहले वबा के दिफा के लिए पाकिस्तान की मिसाल दी जाती है, इंशाअल्लाह ताला वैक्सीन के लिए भी एक बड़ा मुल्क, एक ऐसा मुल्क जो बहुत अमीर मुल्क नहीं है, ऐसे ममालिक के अंदर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक मिसाल बनकर उभरेगा। आपके ताउन से होगा ये। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर असद उमर और मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की मुश्तरका न्यूज ब्रीफिंग आप मुलाहिजा कर रहे थे। उनका कहना था कि कोरोना की सूरत हाल मुल्क में तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है, मजमूई तौर पर कोरोना के आदाद शुमार में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि डाटा और तजुर्बे को सामने रखते हुए हमने प्लान तरतीब दिया है, चाहते हैं कि किसी का रोजगार मुतासर न हो और मईशत का पहिया चलता रहे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। एनसीओसी से बराह रास्त आपने मुलाहिजा की। उनका कहना था कि कराची में वबा का फैलाव ज्यादा